Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic of discussion is electrical resistivity of metals. This is basically the continuation of our previous lecture, that is about specific gate of electron or electronic specific gate. So very much relevant to that. So first of all, we have some introductory points that what is resistivity. You all know from the basic classes. Resistivity is basically measure of resistance of given size, specific size of the material. So sometimes you said it specific electrical resistance, just like specific heat, specific energy and heat capacity. The same phenomena is over there, resistance and resistivity. So you all know resistance can vary for the different shape, size of the material, but the resistivity of the material is supposed to be constant because it is of specific size of the material and for the specific shape. So you all know that material resists the flow of electric current. Some are better conductors, some are better insulators, and some have in-between properties which are semiconductors. So generally, material which conduct electricity called conductor, they have low resistivity, and which do not conduct electricity, they are easily, you can say they are insulator, and they have a high resistivity. So this is all about the basic of resistivity. Now we are moving forward. At room temperature, around 300 Kelvin, the electrical resistivity is basically dominated by collision of free electrons with the vibrating atoms. And when temperature is low, the vibration usually, freeze, just like at the temperature near liquid helium temperature or near absolute zero. So resistivity is mainly due to the collision of free electron with the impurity atoms or some other imperfection in the crystal like vacancies, dislocations or grain boundaries that are present in the real crystal. Due to this fact, we can say that the resistivity of the metal containing imperfection can be written as overall resistivity is basically the sum of resistivity due to the lattice vibration, collision of electron with the vibrating atoms or the phonons, plus collision of electrons with the impurity atoms, rho L plus rho I, due to vibrating lattice and due to collision of electron with the impurity atom. So this is their explanation. This for small impurity content, if impurities are low, if there is no dislocation, there is no vacancy, there is no extra atom is present in the system. So usually rho L due to lattice is often independent of number of defects. It means that the electrical resistivity due to lattice vibration is independent of number of defects. Whereas rho I, which is due to rho I, which is basically due to the collision of electron with the impurity atom, is basically depend upon the number of imperfections, number of defects. So if number of defects are greater, then there is a greater chance that the material have greater electrical resistivity due to imperfections, due to the collision of electrons with the imperfections. So this equation, rho is equal to rho L plus rho I, is known as Mathinson rule, which become less accurate at high temperature and when impurity contents are very high. तो यूजुअली मैथिनसन रूल जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर देता है बहुत सारी मेटल्स के लिए, सिवाय कुछ केसेस के जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई हो या बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी के एटम जो हैं वो मेटल के एटम के अंदर मौजूद। किस समय में है रो आई however proportional to Ni but independent of temperature, ये थोड़ा सा बता दें।
अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करें तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दो वजूहत के बिना पर होती है। उसकी एक वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन फोनॉन के साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन की वजह से मटेरियल रेजिस्टिविटी शो करता है, राइट। और उसकी दूसरी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन जो इम्प्योरिटी के एटम मौजूद होते हैं होस्ट मटेरियल के अंदर, उनके साथ कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी होती है। तो जो वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टिविटी है उसका डिफेक्ट्स के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। डिफेक्ट कम हो या ज़्यादा हो, एटम की जो वाइब्रेशन है उसका ताल्लुक डिफेक्ट्स की तादाद के साथ नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। ठीक है। और दूसरी चीज़ है जो इम्प्योरिटी के साथ कोलिजन की वजह से है, तो इम्प्योरिटी के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा या नहीं, इसका ताल्लुक ये है कि इम्प्योरिटी के एटम कितने हैं। जितने इम्प्योरिटी के एटम ज्यादा होंगे उतने कोलिजन ज्यादा होंगे, उतने रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। इस चीज का टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो पहली टर्म जो रो एल है ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पे डिपेंड नहीं करती, इम्प्योरिटी एटम कितने हैं एन आई जो है नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज, उस पर डिपेंड नहीं करती। और जो दूसरा पार्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी है तो ये रेजिस्टिविटी होगी, इम्प्योरिटी ज्यादा होगी तो ये रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, इम्प्योरिटी कम होगी तो ये रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है। तो वाइब्रेशन का टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है, इम्प्योरिटी एटम कितने हैं इसका टेम्परेचर के साथ ताल्लुक नहीं है। तो एक चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एक पार्ट जो है रेजिस्टिविटी का वो इम्प्योरिटी एटम्स पे डिपेंड करता है, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ग्राफ है, एक रियल क्रिस्टल के लिए, एक हकीकी क्रिस्टल के लिए जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। इस ग्राफ को थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा, इसमें कुछ चीजें हमें नजर आएंगी। एक ये ग्राफ के अंदर रेजिडुअल रेजिस्टिविटी लिखी हुई आपको नजर आएगी, रो नॉट, दिस हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। ये बुनियादी तौर पे आपकी रो आई है जो इलेक्ट्रॉन्स के इम्प्योरिटी एटम के साथ कोलिजन की वजह से रेजिस्टिविटी को शो कर रही है। तो अगर किसी क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी एटम की तादाद चेंज नहीं होती तो रेजिस्टिविटी का ये पार्ट कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसका ग्राफ टेम्परेचर के अगेंस्ट आपको स्मूथ स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब इसकी वैल्यू में कोई कमी बेशी नहीं हो रही, राइट। ओके। ये जो आपके पास रो पी है यानी स्कैटरिंग बाई फोनॉन्स, ये जो आपके पास ग्राफ है ये रो पी का ग्राफ है जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाई टेम्परेचर के केस में और T⁵ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लो टेम्परेचर के केस में। यहाँ ये कर्व है जो इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है और ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन जो है ये इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, यानी फोनॉन्स की वजह से जो रेजिस्टिविटी है इलेक्ट्रॉन के फोनॉन के साथ कोलिजन की वजह से जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर टेम्परेचर हाई हो तो, और अगर टेम्परेचर बहुत लो हो, वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो और वेरी क्लोज टू लिक्विड हीलियम टेम्परेचर यानी कि 4.2 केल्विन, तो फिर जो ये आपके पास रो टी है जिसे आपने रो एल से भी रिप्रेजेंट किया था प्रीवियसली, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे इसको रो पी की बजाय रो एल से ही रिप्रेजेंट करें जैसे कि प्रीवियसली इक्वेशन में आपने इसको डिस्कस किया है। ओके। तो आप ये देखें कि जब टेम्परेचर जीरो हो तो वाइब्रेशनल जो आपके पास फोनॉन्स हैं उनके साथ कोलिजन की वजह से रेजिस्टिविटी जीरो है। व्हेन टेम्परेचर इज जीरो इलेक्ट्रॉन का फोनॉन के साथ कोलिजन नहीं होता, उस वजह से कोई रेजिस्टिविटी नहीं है। इसका मतलब एटम वाइब्रेट नहीं कर रहे, वाइब्रेशन फ्रीज हो गई है बहुत लो टेम्परेचर पे जाके, एब्सोल्यूट जीरो पे जाके। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी। ये देखें ये उसमें इंक्रीज आ रहा है, उसके बाद ये स्मूथ हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर आ जाएगा इसका। अब आपने मैथिसन रूल के साथ ये इक्वेशन जो है वो बनानी है बुनियादी तौर पे। रो इज इक्वल टू रो आई प्लस रो एल था हमारा रिलेशनशिप, यहाँ पे रो पी लिखा है,
रो एल एंड रो पी आर बेसिकली सेम। तो यहाँ पे आप पहले पॉइंट पे अगर देखें तो ये वैल्यू आपके पास रो नॉट है एट दिस पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, रेजिडुअल रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। और जो लेटेस्ट की वजह से है, वाइब्रेशन की वजह से है, वो जीरो है। तो जीरो प्लस रो नॉट, तो इनिशियल वैल्यू आपके पास टोटल रेजिस्टिविटी की कितनी बनेगी, रो नॉट के बराबर। इसलिए ओवरऑल रेजिस्टिविटी रो नॉट से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, नॉट फ्रॉम जीरो, क्योंकि उसमें ये पार्ट तो हमेशा मौजूद है। अगर इम्प्योरिटी है तो ये पार्ट हमेशा उसके अंदर मौजूद रहेगा, ठीक है। वाइब्रेशन नहीं थी तो वाइब्रेशनल पार्ट जीरो है, सो जीरो प्लस रो नॉट, सो इनिशियली यू हैव रो नॉट, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। तो अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले ग्राफ आपका T⁵ के प्रोपोर्शनल आता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे जो आपके पास लेटेस्ट वाइब्रेशनल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो T⁵ के प्रोपोर्शनल है। तो इनिशियली इस क्रम में भी आपको सेम बिहेवियर नजर आएगा, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये ग्राफ भी ऑलमोस्ट स्मूथ हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्लियरली रिप्रेजेंट करता है हमें रिलेशनशिप टेम्परेचर के और रेजिस्टिविटी के, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के दरमियान में, कि किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे जाके ये कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। वाइब्रेशनल एटम के साथ या फोनान के साथ इलेक्ट्रॉन का कुलियन नेग्लिजिबल होता है, तो रेजिडुअल रेजिस्टिविटी ही डोमिनेट करती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है तो रेजिडुअल जो पार्ट है वो नेग्लिजिबली समाल हो जाता है एज कंपेयर टू रेजिस्टिविटी ड्यू टू कुलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द फोनान्स। बोलिए, आपको ये बात समझ आई होगी। इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी डिस्कस कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये रो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, लेकिन जब स्मॉल रो पी होता है तो टेम्परेचर T⁵। राइट राइट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन क्या है इस बारे में? सर इस बारे में क्वेश्चन ये है कि T⁵ ग्रेटर है एज कम्पेयर टू T, लेकिन ये दोनों हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी वैल्यू तो कम होनी चाहिए थी टेम्परेचर की। नो, इसमें ये है कि जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो उस टाइम वाइब्रेशन फ्रीज कर जाती है, वाइब्रेशन आसानी से नहीं होती। जैसे जैसे आप लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो इंतहाई बाउंड स्टेट में वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है टी के, ठीक है, उसका बिहेवियर स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ठीक है। तो इक्वेशन अगर इसकी बनाएं तो ये बनेगी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x⁵, y इज इक्वल टू ax⁵, यानी y x⁵ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहाँ पे? लो टेम्परेचर पे। लेकिन जब टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई हो जाता है तो एटम के दरमियान सफिशिएंट डिस्टेंस होता है कि वो आसानी से वाइब्रेट कर सकते हैं। जब एटम आसानी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है टेम्परेचर के और रेजिस्टिविटी के दरमियान में। तो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का तो ज्यादा कुलियन होगा इलेक्ट्रॉन का फोनान्स के साथ या वाइब्रेटिंग एटम के साथ, ठीक है। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। तो इसी चीज की फर्दर एक्सप्लेनेशन कांस्टेंट है, इसके बारे में भी एक बार दोबारा बता दें। ये जो कांस्टेंट है, विच कांस्टेंट? रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। सर ये रेजिडुअल रेजिस्टिविटी है क्या? हाँ, चलें, बताया तो था मैंने, खैर मैं दोबारा आपको बताता हूँ, गौर से सुने। रेजिडुअल रेजिस्टिविटी रो आई मेंशन किया था पीछे हमने, राइट। ये वो रेजिस्टिविटी है जो इलेक्ट्रॉन के इम्प्योरिटी एटम के साथ कुलियन की वजह से होती है। इम्प्योरिटी एटम वो हैं जो क्रिस्टल में होने नहीं चाहिए थे लेकिन किसी वजह से मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर इम्परफेक्शन है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ कोलाइड ना करता अगर इम्प्योरिटी का एटम मौजूद ना होता तो, ठीक है। अब ओवरऑल क्रिस्टल में तो नहीं है, किसी एक जगह वो एटम मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन का उसके साथ कुलियन होगा। कुलियन की वजह से रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है। तो अगर इम्प्योरिटी के एटम मौजूद होंगे तो इम्प्योरिटी के एटम की वजह से रेजिस्टिविटी होगी। अब इम्प्योरिटी के एटम अगर 5 हैं स्टार्ट में तो टेम्परेचर कुछ भी हो वो 5 ही रहेंगे, 10 हैं तो 10 रहेंगे, 20 हैं तो 20 रहेंगे, राइट। तो टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें
तो भी इम्प्योरिटी के एटम उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अब भी उनके साथ कोलाइड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे ले आए, अब भी इम्प्योरिटी के एटम उतने ही हैं, अब भी इलेक्ट्रॉन का उनके साथ कोलिजन वैसे ही होगा क्योंकि उतने ही एटम हैं। तो जब तक एटम्स इम्प्योरिटी के उतने ही रहेंगे तो रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी। तो ये वो रेजिस्टिविटी है जिसका टेम्परेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मतलब अगर आप टेम्परेचर को रिमूव भी कर दें तो जो बाकी बचेगी ये वो रेजिस्टिविटी है जो इलेक्ट्रॉन के इम्प्योरिटी से कोलिजन की वजह से होती है। जो चीज बाकी बचती है उसे रेजिड्यू कहते हैं, राइट। तो इसी वजह से इस रेजिस्टिविटी को सर ये हमेशा सेम रहेगी? ये सेम रहेगी अगर आपका स्पेसिमेन सेम रहेगा तो, सैंपल सेम रहेगा तो। एक ही मटेरियल के डिफरेंट सैंपल में डिफरेंट नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम हो सकते हैं। सर Right? इसमें कौन सा स्पेसिमेन यूज किया गया? ये जर्नल डिस्कशन कर रहे हैं हम, किसी एक मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे स्पेसिमेन का जिक्र है इस टॉपिक में, अगली स्लाइड पे उसी की डिस्कशन है हमारी। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो तो फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, कंटिन्यू। जी, तो यहाँ पे इस ग्राफ के पॉइंट्स को अगर डिस्कस करें तो एट लो टेम्परेचर हम देख रहे हैं स्कैटरिंग ड्यू टू फोनॉन इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वाइब्रेशन नेग्लिजिबल। ठीक है, देयरफॉर एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन मीन फ्री टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मीन फ्री टाइम कहते हैं दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो टाइम लेता है उसे मीन फ्री टाइम कहते हैं। तो चूंकि वाइब्रेशन नहीं हो रही तो कोलिजन का चांस बहुत कम है, इसलिए वो जो मीन फ्री टाइम है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, कोलिजन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टिविटी 0 को अप्रोच करेगी। इंश्योरिंग नो कोलिजन विद द फोनॉन्स। तो जब फोनॉन वाला पार्ट होगा ही नहीं तो वो आपकी जो पहले इक्वेशन आपने लिखी थी रो इज इक्वल टू रो आई प्लस रो एल, तो रो एल खत्म हो गया, यहाँ से रो एल को 0 कर दिया। तो अब आपकी जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिडुअल रेजिस्टिविटी है, रो इज इक्वल टू रो आई। ठीक है, ये चीज एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल मैच करती है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये थ्योरेटिकल रिजल्ट मैच करता है एग्रीमेंट एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज में। रो एल टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसलिए खत्म हुआ। रो एल वाइब्रेशन से रिलेट करती है, वाइब्रेशन इनके टेम्परेचर डिपेंडेंट होता डिपेंडेंट है, वाइब्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, टेम्परेचर 0 हुआ तो वाइब्रेशन 0 हो गई, कोलिजन खत्म हो गया फोनॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, तो रो एल खत्म हो गई इस इक्वेशन में से। सही है सर। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट ऑफ सोडियम शोज रो आई एट 0 केल्विन कैन हैव डिफरेंट वैल्यू ड्यू टू डिफरेंस इन द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, राइट। डिफरेंट सैंपल ले लें अगर सोडियम के तो किसी में इम्प्योरिटी ज्यादा होगी किसी में कम होगी, तो इम्प्योरिटी की वजह से जो रेजिडुअल रेजिस्टिविटी है वो डिफर कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ओवरऑल रेजिस्टिविटी पे पड़ेगा। वो कहता है कि जो आपके पास रो एल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसका इम्प्योरिटी के एटम कम है या ज्यादा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है। ठीक है, तो रो एल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मटेरियल एक है लेकिन उसमें इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। क्वांटिटी क्यों चेंज है? हाँ, किसी मिसाल के तौर पे एक में 5 किसी और चीज के एटम आए हैं, दूसरे के अंदर जो है वो 10 आ गए हैं। ठीक है, नेचुरली जो क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं उन क्रिस्टल में आमतौर पे इम्प्योरिटी पाई जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट जगह से अगर आप सोडियम ले लें तो कहीं पे इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन और होगी, कहीं दूसरी जगह से जो आपने लिया होगा उस पर कंसंट्रेशन और होगी। यस। तो अगर इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इट मेक श्योर कि रेजिडुअल रेजिस्टिविटी वेरी करेगी सैंपल टू सैंपल अगर इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन में फर्क है तो। ये बात हम पहले कर चुके थे कि रो एल जो है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये तादाद पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो रो एल ऑफ टी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे वो होगी रो माइनस रो आई। ठीक है, तो रो आई की वैल्यू अगर चेंज होगी तो उसको रो कंपनसेट करेगा, रो एल कांस्टेंट रहेगा। सर ये रो आई के
साथ 0 PL लिखा है, इसका मतलब टेम्परेचर 0 0 है। केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ही नहीं। आप इसके साथ 0 ना भी लिखें तो नंबर ऑफ डिफेक्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो है ही उन रेजिडुअल एटम की रेजिडुअल है, वजह से। ये रेजिडुअल है। इसके साथ आप 0 ना भी लिखें तो इसकी वैल्यू वही रहनी है। ये बदलेगी अगर ni बदलेगा तो, नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज बदलेंगी तो। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एग्री करता है। द ओवरऑल इम्प्योरिटी and perfection in metal can also be estimated by measuring the ratio कि रेजिस्टिविटी रूम टेम्परेचर पे कितनी है और लिक्विड हीलियम के टेम्परेचर 4.2 केल्विन पे कितनी है। इसकी अगर रेशो निकाल लें तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट बनेगा कि इम्प्योरिटी कितनी है मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का परफेक्ट होना या ना होना उसका अंदाजा इस रेशो से लगाया जा सकता है कि अगर इम्प्योरिटी चेंज होगी तो दो रेजिडुअल जो रेजिस्टिविटी है आपकी वो चेंज होगी। ठीक है, रेजिडुअल रेजिस्टिविटी अगर आपकी चेंज होती है तो आपकी ओवरऑल रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की डिफरेंट वैल्यू आपको मिल रही है, उसकी अगर आप रेशो ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि जिस मटेरियल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कितनी इम्प्योरिटी मौजूद है। इसी चीज को अगर आप फर्दर स्पेसिफाई करना चाहें तो आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे तो वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन इतने लो टेम्परेचर पे 4.2 पे तो वाइब्रेशन नहीं होती, तो वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टिविटी भी नहीं होती। तो अगर यहाँ मैथिसन रूल लगाएं और लिखें रो एल एट 300 प्लस रो आई एट 300, तो ऊपर तो ऐसे ही मौजूद रहेगा रो एल एट 300 प्लस रो आई, लेकिन डिनोमिनेटर में 4.2 केल्विन है तो रो एल एट 4.2 केल्विन इज नेग्लिजिबल, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपने सिर्फ रो आई लिखा है, तो ये रेशियो बेसिकली ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल रेशियो, क्योंकि इंतहाई लो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टिविटी के अंदर जो पार्ट है वो विनिश हो जाता है। तो डिफरेंट मेटल के लिए, डिफरेंट मटेरियल के लिए इसने वो रेशो निकाली है। कहता है फॉर केमिकली प्योर एंड परफेक्ट मेटल जो हमें नेचुरली मिलते हैं, द रेजिस्टिविटी रेशो में बी एज हाई एज 10 पावर 6। ये रेशो 10 पावर 6 के तकरीबन बराबर आती है। तो जितने टोटल एटम होते हैं उसमें आप जो है वो रेजिस्टिविटी के रेशो जो है वो अगर निकालें तो तकरीबन 10 पावर 6 निकलेगी। कमर्शियली प्योर मटेरियल अगर आपके पास हो तो ये रेशो जो है ये दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 2, मतलब कमर्शियली स्पेशली उनको प्योरीफाई किया गया हो तो उसमें भी अराउंड 10 पावर 2 जो है वो उसके लिए निकलेगी ये रेशो। तो इस रेशो की मुख्तलिफ वैल्यूज को देख के हम गेस कर लेंगे कि इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन कितनी है। कुछ अलाय ऐसे हैं जो बहुत ही परफेक्ट होते हैं, उन अलाइज के लिए ये रेशो 1 के बराबर आ जाती है, मतलब नेग्लिजिबली उसके अंदर इम्प्योरिटी एटम मौजूद होते हैं। ये इस चीज को जस्टिफाई करता है। तो मेटल्स की बहुत बड़ी वैल्यू है ये रेशो की, इसका मतलब मेटल्स में काफी ज्यादा इम्प्योरिटी एटम मौजूद होते हैं, तो उनकी रेजिडुअल रेजिस्टिविटी होती है, काफी ज्यादा होती है। कमर्शियली प्योर मटेरियल से भी आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते डिफेक्ट्स को या इम्प्योरिटीज को, लेकिन कुछ अलाय ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी इम्प्योरिटी लेवल जो है वो बहुत लो होता है, तो उनके लिए ये रेशो जो है वो बहुत लो हो जाती है, एज लो एज 1 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारी आखिरी बात है कि मैथिसन रूल रो इज इक्वल टू रो एल प्लस रो आई, जो हमने पहली इक्वेशन पढ़ी थी, ये काफी सारी मेटल्स के लिए तो वैलिड है। ये आखिरी पॉइंट है, मैथिसन रूल जो है ये हमेशा वैलिड नहीं होता, जनरली वैलिड है। इसके जरिए आपको अगर रो आई का पता हो और ओवरऑल रो का पता हो तो आप जो लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टिविटी का पार्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मोस्टली सम मेटल्स के लिए, लेकिन तमाम के लिए सही नहीं है। इसकी ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए एक एम्पिरिकल फार्मूला यूज किया जाता है जो कि ये हमारी बुक में मौजूद है कि रो एल की वैल्यू जो है वो इस रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। यहाँ एक एम्पिरिकल फंक्शन एफ ऑफ टी ओवर थीटा आर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एम्पिरिकली कोई चीज़ निकाली जाए मतलब गैस वर्क के जरिए जो है वो फार्मूला ड्राइव किया जाता है कि रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से एग्जैक्टली मैच कर जाए। ठीक है, तो इसे एम्पिरिकल मेथड कहते हैं। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मैथिसन रूल से ज़्यादा जर्नलाइज्ड है और ज़्यादा बेहतर हमें एस्टिमेट देता है रो एल की वैल्यू निकालने के लिए। तो आमतौर पे जहाँ कमर्शियली या हाई लेवल पे या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको ज़रूरत पड़ती है थर्मल वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टिविटी को निकालने की,
तो उसके लिए फिर हम ये एम्पिरिकल फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यही हमारी आज की डिस्कशन है। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। अगर कोई फर्दर आपके पढ़ने के बाद जहन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अभी कोई बच्चा सवाल पूछना चाहे तो आप जो हमने इंट्रोडक्शन किया है इसका वो तो बता दें दोबारा। इंट्रोडक्शन तो बेसिक एफएससी की बुक से है, स्टार्ट सिंपल एफएससी की बुक से है इंट्रोडक्शन तो के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का आपस में क्या ताल्लुक है। आप लोग अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मटेरियल की जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की सलाहियत है उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं किसी भी मटेरियल की। तो अगर स्पेसिफिक साइज शेप और लेंथ फिक्स रख के मेजर की जाए तो वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अगर साइज पे कोई लिमिट ना हो, शेप पे कोई लिमिट ना हो तो वो रेजिस्टेंस कहलाती है। स्पेसिफिक कर दें अगर आप किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो किसी भी मटेरियल की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह